الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم می ظلم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم عمی بے قصا مونس انسجاں کائنات کی جان ہم سب کا عقیدہ اور ایمان مکہ اور مدینے کی سرزمین کو آباد کرنے والا مہمان کائنات کو دلہن کی شکل کے اندر سنوارنے والا نبی اس محبوب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہم اور آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ لبوں کو چوم کر حضور کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد کے لائق ہیں آپ اور قاری بلال صاحب آپ اس پر نہ جائیں آپ کم ہیں ایمان والوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں بدر کے اندر 313 تھے کربلا کے اندر 72 تھے اور ہندوستان کے اندر جب نبی کا شہزادہ دین پھیلانے کے لیے آیا تھا آپ کے ساتھ 6 اور 1 7 آج کروڑوں کے تعداد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رہنمائی کرنے والے موجود ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور دوسرا مشن چل رہا تھا اسے فیل کیا یہ میرے کرنے سے نہیں ہوا قاری بلال صاحب کے کرنے سے نہیں ہوا اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی اس نے چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا سے کرم ہوا انہوں نے اس شادی کے اندر اپنا اور پروردگار عالم کا ذکر کرانا چاہا تو قاری بلال صاحب کو وہ ذہنیت بخشی کہ اس گندے ماحول کو آپ نے برباد کیا اور حضور کی سنت کو آباد کیا آشار آپ نے بہت سنے قاری بلال صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھبرائے نہیں 50 کا مجمع ہو تب بھی میں ویسے ہی بولتا ہوں لاکھ کا مجمع ہو تب بھی میں ویسے ہی بولتا ہوں مجھے چاہیے ایمان والے لوگ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ کائنات کے اندر کوئی سے بھی خطے میں رہے وہ میرا جی سے تعلق نہیں کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں کہ صاحب یہ سیفی یہ بلا یہ کچھ نہیں جی حضور کے دین کا ماننے والا ہو اور اعلیٰ حضرت سے
रतबत और रिश्ता कायम रहता हो। उस पे हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जल्द साहब शादी के ताल्लुक से आप समाप्त करने दो आसार पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। 20 से 22 मिनट तक मैं आपके दरमियान हूँ। फिर कारी बिलाल साहब का आपको बयान सुनना है। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके नस्लों को आबाद रखे, आमीन। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक अता करे खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता करे खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, अता करे खुदा सदका अली ज़हरा की शादी का, रही इस शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ लबों को खोले कहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुआ अज़वाज का रिश्ता ये जन्नत तक रहे कायम, हुआ अज़वाज का रिश्ता ये जन्नत तक रहे कायम, हुआ अज़वाज का रिश्ता ये जन्नत तक रहे कायम, तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का, तुझे है वास्ता मौला अली ज़हरा की शादी का। जिनकी शादी है मोहम्मद आरिफ भाई नाम है ना उनका, उनके जानिब से मक्का मुलाहिदा कर लें और सबके साथ बोले सुभान अल्लाह। मुबारक हो तुम्हें आरिफ मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें आरिफ मुबारक हो, तुम्हारी शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरीयत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी में चर्चा अली ज़हरा की शादी का। एक मर्तबा और पढ़ना है? इजाज़त है? आप इतने खामोशी के साथ न बैठे ताकि वीडियो बनने के बाद लोग ये देखें यार कम थे, आप अपने अंदर जज्बात पैदा करें और अपनी नस्लों को कलम पकड़ना नहीं कलम चलाना सिखाएं। समझ गए? जिस दौर से आप गुजर रहे हो, आप देख रहे हो, हालात जानते हैं और हालात कैसे चल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस मेरे उम्मती के हाथ में कलम होता है
اس کی قلم کی مار نسلیں یاد رکھتی ہیں. قلم کی طاقت آپ ان سے پوچھنا، تھوڑا سا مجھے بیان کرنا ہے. ہمارے نئی جنریشن جو ہے وہ بالکل جاہل بنتی چلی جا رہی ہے، اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائیاں نہیں رہی، اب ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے. دوبارہ فرمائش کی ہے، سماعت کرنے محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عارف، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمہیں عارف، مبارک ہو تمہاری شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا، تمہاری شادی میں چرچا علی زہرا کی شادی کا. یہاں سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، بڑے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کریم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی قرآن نے کہا ہے نا، یہی قرآن کا فیصلہ ہے. شادی اب تو نئی طریقے سے لوگ نئی نئی رسم اعجاز کر رہے ہیں. جو چیز اسلام کے اور شریعت کے دائرے کے اندر نہیں تھی، اس چیز کو بھی ہم نے لا کر شادی کے اندر شامل کر دیا ہے. اب یہ دیکھا جاتا ہے، ہلدی کی رسم چل رہی ہے نا، پیلی ہی ٹی شرٹ ہوگی، سفید پینٹ ہوگی، ہوتا ہے نا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی یہاں سے لے کر پوری دنیا تک اگر شریعت کے اعتبار سے اور اسلام کے اینگل سے یہ رسم جائز کر دے تو میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ رسم نہیں ہے. ہمارا شادی کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں کسی ہسٹری باز کی ہسٹری بتانے بیٹھا نہیں ہوں. میں شادی کا اینگل آپ کو بتاؤں گا، شادی کس طریقے سے کی جاتی ہے. ذرا پوچھ تو صحیح مدینے والے آقا سے، میرے اور آپ کے نبی نے اپنی بیٹی لخت جگر کی شادی کس طریقے سے کی تھی؟ کس طریقے سے حضرت علی کے مہر باندھے گئے تھے؟ کس طریقے سے حضرت فاطمہ کو زہرا کو گھر سے رخصت کیا گیا تھا؟ آپ کو 5 اسٹار ہوٹلوں سے لڑکیوں کو ودا کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو وہاں سے ہی رخصت کر دیا جاتا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابہ سنو اور یہ پیغام میری امت تک پہنچا دینا کہ جب بھی اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہو تو اپنی تحریک پر شادی کرنا. میرے آقا سے صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علی کا وسلام فدا کا و امی بابی، ہمارے ماں باپ ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ، گھر سے جب شادی کی جائے گی، جب گھر سے لڑکیوں کو رخصت کیا جائے گا تو اس کے اندر وجوہات کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اب میرے نبی کا جملہ سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ سنو، جب تمہاری بیٹیاں نئی نئی جوڑے کے اندر نئی نئی دلہن بنے گی، اور جب اپنی پاؤں کی برکتیں، اپنے قدم کی برکتیں، اپنے جسم کی برکتیں اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر جائیں گی، اور جب تم گھر سے رخصتی کرو گے، خیر آباد کہو گے، تو ایک لفظ کہہ دینا، بیٹی جا تو رہی ہے، جس طریقے سے مجھے باپ کہا ہے اپنے شوہر کو بھی باپ کہنا، جس طریقے سے اپنی ماں کو ماں کہا ہے اپنی ساس کو بھی ماں کہنا، جس طریقے سے اپنے بڑے بھائی کو بھائی کہتی رہی ہے اپنے دیور کو بھی بھائی کہنا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ اپنی بیٹی کو یہ رخصتی کر کے گھر سے رخصت کرتا ہے، بیٹی رخصت بعد میں ہوتی ہے، رحمت پروردگار پہلے رخصت لگتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن شادی، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ نئے طریقے کے
रस्में हम अदा कर रहे हैं। कोई कहता है तेरी शादी के अंदर रंडी नहीं नाचेंगी तो मैं शादी के अंदर दाखिल नहीं होगा। कोई कहता है तेरी शादी के अंदर डीजे नहीं आएगा तो मैं तेरी शादी के अंदर नहीं आऊंगा। मेरे प्यारे उस नबी से पूछ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस शादी के अंदर डीजे बजाया जाता है, जिस शादी के अंदर नाच गाना होता है, फरिश्ते उस घर के अंदर कदम नहीं रखते हैं, रहमत के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते हैं, और उस शादी के रहने वाले लोगों और मर्द और औरतों के अंदर जिन्नात शामिल हो जाते हैं। लोग कहते हैं फलां शादी के अंदर मेरी बेटी गई थी, जिन्नात का असर हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने कैरेक्टर को सुधार लो और अपनी आखिरत को याद कर लो। जिसने आखिरत को याद कर लिया, कमली वाला नबी इरशाद फरमाता है दुआ सुबहाना रब की बारगाह में तेरा काम है वो तेरी मंजिल को पार लगाना। ये परवरदिगार जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत कोई आए या ना आए शादी के अंदर किसी की गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरा उम्मती मेरी सुन्नत के मुताबिक मेरी सुन्नत को अदा करता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वहां वो सुन्नत अदा करता है, यहां से मेरा कर्म हो जाता है। हमने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कितनी वीडियो वायरल होती है? कोई डांस करते हुए मर गया, कोई नाचते हुए मर गया, कोई शराब पीते हुए मर गया। अब देखें शादी किस तरीके की होनी चाहिए। लोग दो चीजों को भूल जाते हैं शादी के अंदर। अब मैं आपसे पूछ लूं शादी के अंदर वाजिब कितने हैं, फर्ज कितने हैं और सुन्नतें कितनी, बता सकते हो? इस तरफ से हम बिल्कुल कोरे हैं, और जो मेन चीज है शादी के अंदर हम उसको छोड़ देते हैं। शादी के अंदर दूल्हा को हार डालना ये मेन चीज नहीं। शादी के अंदर पूरी बारात को खाना खिलाना, पूरे गांव को खाना खिलाना ये मैन नहीं। शादी के अंदर मैन है निकाह। जी क्या है? निकाह। दो चीजों पर लड़ाई होती है, किसी चीज पे लड़ाई नहीं होगी, या तो महर पे या निकाह पे, या तो काजी के टके पर या लड़की के महर पर होता है ना। जरा शरीयत उठाकर देखो, किताब का नाम है फतावे हिंदिया, दूसरी किताब का नाम फतावे आलमगीरी, तीसरी किताब का नाम है फतावे ताजिशरिया। हजरत अल्लामा शेख फखरे अजहर हुजूर ताजिशरिया मेरे पीर मुर्शिद, उन्होंने दोनों किताबों से जुजिया नकल किया और फतावे ताजिशरिया के अंदर वो मौजूद है। आप इरशाद फरमाते हैं कुआरी लड़की का जब काजी निकाह पढ़ाए, कुआरी का किसका? कुआरी का, तो काजी का हक क्या होता है? 25,000। कितने? ये हल कर जा रहा हूं, यहां से लेकर पूरी दुनिया के अंदर पूछ लेना। और अगर तलाक शुदा है, बेवा है, एक मर्तबा शादी हो चुकी है या शौहर का इंतकाल हो चुका है, छूट चुकी है, तलाक हो चुकी है, उसका निकाह पढ़ाने का पैसा है काजी का 12,500। और अगर कोई 6,000 मांग लेना तो गलियों में टहलता फिरता नारा लगाता है कि इमाम साहब लग गई आज तो, जेब गरम है, आज तो मौका मार दिया यार, कभी इमाम के दिलों से पूछा कर। जी बेशक। वो तन्हे तन्हा अपने खानदान को छोड़कर तेरा खानदान आबाद कर रहे हैं। जी बेशक। वो तन्हे तन्हा रहकर तेरी बस्ती को, वो तेरी बस्ती के बच्चों को दीन सिखा रहे हैं। अगर यही आलिम दीन न रहे तो किसके पास नमाज़ें सीखोगे, किसके पास उसके वाजिब और फराइज और सुन्नतें सीखोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ जहां तक आपका दिल खोलकर पैसा देना चाहे कहीं खर्च ना करना, एक आलिम दीन पर लुटा देना। और जब निकाह खाने की बात आए ना, और अगर कहीं 6,000 चल रहे हो तो तुम 10,000 देकर ऐलान करना कि इमाम साहब मैं खुशी के साथ 10,000 दे रहा हूँ। इधर इमाम का दिल खुश होगा, उधर परवरदिगारे आलम तुझसे राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। सिर्फ पैसा दुनिया को दिखाने की चीज नहीं है। पैसा अगर तेरे पास है तो दीन के अंदर खर्च कर, और पैसा अगर तेरे पास है तो मदरसा इस्लामिया के यतीम बच्चों को खाना खिला दे। और शादी के अंदर किसी को न बिठा, किसी रिश्तेदार को पहले बिठाने की जरूरत नहीं है। मदरसे के बच्चों को बिठाकर टेबल लगाने के बाद अपने हाथ से खाना खिला दे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अगर उनके पेट के अंदर तेरी शादी का पहला लुकमा उतर गया, इधर वो खाना खाएंगे, उधर परवरदिगारे आलम रहमतें बरसाता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जनाब मौलाना इदरीस रज़ा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म कर दे। अरे मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही आपको? नहीं। शादी कैसी होनी चाहिए? आज देखा है तुमने
18 साल का जवान काला कलौटा भी है ना तो ये कहता है हिरनी आनी चाहिए। जो दिखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल खुद का आप अच्छा नहीं तो उसे हिरनी चाहिए। कहता है नागिन जैसी उसकी आंखें होनी चाहिए। मेरे प्यारे, जब किसी की बेटी को देखने जाया करो ना तो सबसे पहले अपने गिरिबान के अंदर झांक लिया करो कि मेरे घर के अंदर भी बेटियां हैं नहीं। जब तुम किसी को फेल कर आते हो, किसी को इग्नोर कर आते हो, तो वो अपना आईना शीशे के अंदर देखती है और कहती है मालिक करीम तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे पैदा किया है, मेरे हाथ भी सलामत है, मेरा जिस्म भी सलामत है, लेकिन मेरे अंदर किस चीज की कमी है जो लोग मुझे फेल कर जा रहे हैं। और प्यारे, दुनियादार की लड़कियों को ना देखना, और लड़की वही खुशहाल रखता है जो मुस्तफा का आशिक होता है। कितने ही बड़े मालदार के अंदर रखते हिस्ट्री उठाकर देख ले, तलाकशुदा वही लड़कियां मिलेंगी जो ऐशो इशरत के अंदर रह रही है, जो ऐशो इशरत के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रही है। तलाक उनके घरों के अंदर नहीं होती है जो मजदूरी करता है, वो इस रिश्ते की कदर जानता है। अब शादी कैसी होनी चाहिए, लड़की कैसे देखें हम, लड़की कैसी हो? सबसे पहले हम ये देखें ये कुरान पढ़ी हुई है नहीं है ना? कुरान पढ़ी हुई है नहीं, उससे फायदा क्या होगा? सुने, एक साहब की शादी हुई, और शादी जब हुई ना तो हमारे और आपके दरमियान जो बातें चलती है ना नौजवान लड़कों के अंदर कि पहली रात के अंदर मेहर माफ करा लिए तो तेरा अब्बा माफ करा लेगा मेहर। कुछ भी बोल तो मेहर माफी से अदा नहीं होंगे जब लोग अदा नहीं करोगे। और सबसे गलत रिवाज हमारे अंदर चल रहा है 5786, 3786, 2786 का मेहर हमने इतना नीचे गिरा दिया। उसने 8 लाख रिश्ते के अंदर दिए, 4 पहिया दी, बुलेट तय थी वो भी दी, और तू उसके बेटे को 5786 की समझ रहा? मेहर क्यों रखा गया शरीयत के अंदर, जानते हो इसकी बात? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शरीयत के अंदर मेहर इसलिए रखा गया ताकि लड़की का जब मेहर बांधा जाए ना, वो चाहे लाख हो 2 लाख हो, तो दोनों के अंदर ना इत्तेफाकी हो या दोनों के अंदर कोई ऐसी बात बिगड़ जाए, एक रहे एक न रहे, तो उस पैसे से वो लड़की अपनी जिंदगी बसर कर ले, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा ले। इस चीज का नाम है मेहर। शादी हुई उसकी, उसने ऐसा नहीं किया था जैसे आज के लोग मुसलमान कर रहे हैं। उसने नमाज फजर अदा की और अपनी बारगाह में दुआ की मालिक करीम मैं शादी जिससे करने के लिए जा रहा हूं वो भी कुरान पढ़ी हुई हो, मुस्तफा की सुन्नतों के अंदर ढली हुई हो। शादी कर जब लेकर आया ना, पहली रात आई तो यार बीवी कितनी चालाक थी। आज की औरत आती है ना, आज दीवार लग गई हमारे घरों के अंदर, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कभी 10 साल पहले की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो कौम एक दस्तरखान पर बैठ के खाती थी ना, वो आज कुत्ते और गधों की तरह खा रही है जी। इसीलिए तो कैंसर हो रहा है, इसलिए बीमारी आ रही और घाव खड़े होकर। और इसे क्या कहते हैं? VIP। अबे तुझसे बड़ा तो VIP कुत्ता है जो खड़े होकर खाता है, तुझसे बड़ा तो VIP गधा है जो खड़े होकर खाता। कभी भैंस को बैठकर खाते हुए देखा है? ये दुख के अंदर या परेशानी के अंदर बैठ गई तो वो तो अलग बात है, खड़े होकर खाती है, भैंस नहीं खाती, बैल खाता नहीं खड़े होकर। तो उसमें और हम में फर्क क्या रह गया? पहले दस्तरखान बिछाए जाते थे तो जब तक खाना स्टार्ट नहीं होता था, जब तक दूसरे कोने से खड़े होकर एक शख्स खड़ा होता तो कहता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और खाना स्टार्ट कर दे। होता था, अब होता है? अब तो गए आया पिया ये भी पता नहीं कि निकाह के अंदर शामिल होना है नहीं होना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो निकाह के अंदर शामिल होता है परवरदिगार आलम उसकी बख्शिश को निजात अता फरमा देता है। दुआ के अंदर शादी हुई उसकी, घर के अंदर दुल्हन आई और जैसे ही पहली रात के अंदर मिलने के लिए गया ना तो दुल्हन ने सलाम किया खड़े होकर। यार आज की कर लेगी? बताओ कर लेगी आज की? जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा माहौल आप उठाओगे। सलाम किया उसने, कहा मेरे शौहर सरदार मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहता है बताएं क्या बात है? बोले आप ये बताएं कुरान पढ़े हुए हैं नहीं? क्या कहा लड़की ने? आप कुरान पढ़े हुए हैं नहीं?
कहता है मेरी शरीक हयात आज तक कभी मैंने मदरसे के अंदर कदम नहीं रखा है, मुझसे आउज़ और बिस्मिल्लाह सही तरीके से पढ़नी भी नहीं आती है, तुम कुरान की बात कर रही हो, मुझसे तो अली बे के ढंग से भी नहीं आता है। तो उसकी बीवी ने क्या कहा था, मेरे शौहर सरताज आपका कुरान पढ़ने का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है, मैं कुरान की आलिमा हूँ, मुझको आलिमा कहा जाता है, मेरे बाप ने मुझे मुस्तफा की शरीयत का इल्म सिखाया है। अल्लाह अकबर। अब देखें शौहर कहता है मेरी शरीक हयात मैं आपसे कुरान पढ़ूंगा, कहीं दुनिया वाले मुझे इग्नोर तो नहीं करेंगे, कहीं मेरी बेइज्जती वही नहीं होगी। वो बीवी कहती है मेरे शौहर सरताज जब कोई बंदा मोमिन कुरान का पहला लफ्ज पढ़ता है परवरदिगार आलम उसे 10 नेकी अता फरमाता है। आप कुरान पढ़ेंगे रब्बे करीम आप पर रहमत की बारिश अता फरमाएगा। अब देखें नूरानी कायदा लेकर बैठा है, एक हफ्ते के अंदर नूरानी कायदा मुकम्मल हो गया, 6 महीने के अंदर इन्हें कुरान मुकम्मल कर दिया। और कराने वाली कौन है, जो जोड़े के अंदर बनकर आई है, जो बहर के अंदर बनकर आई है, जो हम सफर बनकर आई है, उसने कुरान पढ़ाया है। अब जैसे ही 6 महीने के बाद मस्जिद के पड़ोस के पास में किसी का इंतकाल हुआ, वो जैसे ही इंतकाल हुआ ना उसको दफना दिया गया। जब तीजा आया तो तीजे के अंदर चले भी पड़े जाते हैं, कुरान की तिलावत भी की जाती है। अब लोगों ने जब इसको पढ़ते हुए देखा ना तो ये तीजे की सबके अंदर नहीं बैठा था, ये चले पढ़ने वाले के सबके अंदर नहीं था, ये वहां गया कुरान इसकी बीवी ने पढ़ाया था। वो जाता है, जाने के बाद कहता है वो हाफिज साहब मुझे पढ़ा पारा दे दो। अल्लाह अकबर। कुरान का पारा पढ़ने के लिए बैठ गया और जैसे ही बैठा है तमाम लोग देखकर दंग रह गए, रिश्तेदार भी देख रहे हैं, खानदान वाले भी देख रहे हैं, आस पड़ोस के भी देख रहे हैं कि कभी इसने मदरसे की शक्ल नहीं देखी है, आज ये कुरान का फला पारा पढ़ रहा है। जैसे ही तीजा मुकम्मल होता है तो सगा भाई कलाई पकड़ता है, कहता है मेरे भाई बता तो सही तुझसे कुरान नहीं पढ़ना आता था तो कुरान कहां से पढ़ना सीखा है। अल्लाह अकबर। अब सच्चा पंच के अंदर है कि अगर बीवी का नाम लिया जाए तो लोग मुझे रुस्वा कर देंगे, कहा उससे पढ़ा है जो तेरे निकाह के अंदर आई है। जैसे ही इतने सुना और सुनने का बाप कहता है मैं किसी हाफिज कुरान से कुरान नहीं पढ़ा हूँ, मुझे किसी कारी कुरान ने या आलिम दीन ने कुरान पढ़ना नहीं सिखाया है। जो 6 महीने मेरे निकाह के अंदर बनकर आई है, मेरी बीवी ने मुझको कुरान पढ़ना सिखाया है। तब उस सगे भाई ने कहा था ऐ मेरे भाई मुबारक हो और दुनिया वालों सुनो, लड़की जब देखना तो कुरान पढ़ने वाली देखना, जब कुरान पढ़ने वाली आएगी तो नस्लें भी कुरान पढ़ने वाली बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब उसने कहा था दुनिया वालों 5 स्टार की लड़की बात में देखना, एजुकेशन की लड़की बात में देखना, कुरान पढ़ने वाली लड़की देखना। यार चल औरत अपने शौहर को कुरान पढ़ा दे, उसकी इज्जतों के अंदर चांद कैसे लग रहे होंगे, उस पर रहमत खुदाबंदी कैसे बरस रही होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बेटी कुरान पढ़ी हुई होती है वो मर तो सकती है लेकिन मुस्तफा की शरीयत को छोटा नहीं कर सकती। नहीं देखा तुम्हें, सगा बाप बेगैरत, सगा भाई बेगैरत, सगा ताऊ बेगैरत और भी स्कूटी चलवा रहा है सगी बेटी से, यहां तक के कपड़े पहनवा रहा है तू और ताबीज दे मस्जिद का इमाम। क्या कंडीशन है हाल बना रखी है तुमने, फिर कहते हो हम पर जुल्म क्यों हो रहा है, फिर कहते हो हम पर मुसीबतें क्यों आ रही है। जब तक अपने कैरेक्टर ठीक नहीं करोगे, जब तक मुस्तफा की गुलामी के अंदर आप सही तरीके से दाखिल नहीं होगे, ऐसे ही काटे जाते रहोगे, ऐसे ही मारे जाते रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ तभी तो आला हजरत ने कहा था आज मैं उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरी बात बुरी तो नहीं रही है, कड़वी बातें हैं, दिल पर लगेंगी ना आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं ना मैं आपका बिगाड़ सकता हूँ। सगा भाई मैंने देखा है हालात यही चल रहे हैं, सगी बहन स्कूटी चला रही है, सगा बाप पीछे बैठा है। क्या मेरी और आपकी घर की बेटियां मेरे और आपके नबी की बेटी से अच्छी है? खत्म कर ले रे और आगे बात बढ़ाए। शादी कैसे करनी चाहिए? जब तेरे घर के अंदर बेटी या बेटे की शादी हो ना तो 7 लड़कियां कुआरी हो, कितनी? 7 लड़कियां कुआरी हो
और उनको वुजू करा। वुजू कराने के बाद उनके लिए मुसल्ले बिछा। मुसल्ले बिछाने के बाद कुरान का 27वां पारा खोलकर सूरह रहमान पढ़वाओ उनसे। और सूरह रहमान जब पढ़वाएगा ना, इधर भाई की बारात रुखसत हो रही होगी, उधर बहनें कुरान की तिलावत कर रही होंगी, इधर बहन रुखसत हो रही होगी, उधर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत हो रही होगी, कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा होगा। इसका बेनिफिट क्या आएगा? जरा पूछ तो आला हजरत से। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जिस शादी के अंदर जाने से पहले कुरान पढ़ा जाता हो, जिस शादी के अंदर वहां से वापसी से आने से पहले कुरान पढ़ा जाता हो, जब कुरान पढ़कर जब बहनें भाई को विदा करती है शादी का जोड़ा पहनाकर, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सारी बलाएं टूट सकती है, लेकिन वो सफर कभी बर्बाद नहीं हो सकता है, वो सफर कभी नाकारा नहीं हो सकता है। इधर कुरान की तिलावत कर भाई दुल्हन ले लेकर जाएगा, परवरदिगार आलम तेरे सफर को आसानी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे शादी हो? हमने तरीके बदल दिए। आज तो ठग बैठे हुए, ठग डकैत, जिन्हें चोट्टा कहा जाता है। 3 तरीके के रिश्ते करने वाले आते हैं। कितने? ये तो आपको भी मालूम होगा। पहला कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे लड़की की जरूरत है। होता है ना, ये होता है ना, लेकिन वो बहरूपिया होता है। वो तुम्हें अपनी मीठी मिठास के अंदर, बोली के अंदर मार देना चाहता है। वो कहता मुझे तेरी बेटी चाहिए। अब रिश्ता हो जाता है तो कहता मुझे बुलेट भी चाहिए, मुझे 4 पहिया भी चाहिए। होता है ना? एक रिश्ता आता है जो दोगे अपनी बेटी को दोगे। होता है ना? तीसरा रिश्ता आता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तेरे घर के अंदर रिश्ता आ जाए ना तो उसको आंखें मीच कर कबूल कर लेना। तीसरा रिश्ता आता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुस्तफा की सुन्नत के अंदर ढली हुई लड़की चाहिए। सुभान अल्लाह। यह लड़का चाहिए। आज तो हमने अजीब गरीब रस्में लागू कर दी है। निकाह के अंदर देखो तो सगा भाई गायब, सगा बाप गायब, सगा ताऊ गायब है। खाया पिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, घर आगे बैठकर क्या कर आए, खाना खा कर आ गए हम तो। और दावत एक की होती है तो 4 को लेके जा रही है मोटरसाइकिल पे उठा के, तू भी चल मेरे दोस्त की शादी है, जरा शरीयत उठाकर देखिए। जिसकी दावत है उसी का खाने का हक है, उसी को जायज है। और जो लेकर जाए ना यार दोस्तों को कि चल मेरे यार दोस्त की शादी है, तो उसके भी लिए भी नाजायज और हराम हो जाता है खाना, जिन्हें वो लेकर गया उनके उससे। कहां तक जाओगे? कुरान पढ़ने वाली लड़कियां अपने घरों के अंदर दाखिल करो। मैं 12 कह चुका हूं, जो घर के अंदर नाचने वाली औरत होगी उसकी कौक से कोई आलिमा पैदा नहीं होगी, रंडी ही पैदा होगी। समझ गए? जो घर को नचाती है ना बाद में कि अब नाच, मेरी उंगली पर नाच। कैसे नाचते हो तुम मेरे प्यारे? जो मुस्तफा की शरीयत के अंदर ढली हुई होती है, जिसे कुरान पढ़ने का तरीका आता है, जिसे कुरान समझने का सलीका आता है। और लड़कियां वही बेहतर रहती है जो गरीब की होती हैं। मालदार की लड़की तो एटीट्यूड में रहती है। मैंने कई जगह देखा है, कई जगह तो अपने शोहर से कह दिया कि मेरे बाप ने इनोवा दिया, इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, और तू हाथ भी नहीं लगा सकता। वो लेकर आइए, तेरा क्या है इसको? 10 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। मुझे ये बताओ, नॉर्मल सी बात आपसे कर जा रहा हूं, किसी के यहाँ 6 महीने का बेटा हो या 8 साल का बेटा हो, मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूं। आप दे सकते हो अपना बेटा? अरे बोले दे सकते हो? लड़की दे सकते हो? फिर क्यों अपने बेटों को 10 लाख के अंदर बेच रहे हो? क्या ये बोली नहीं लग रही है कि 11 बीघे आ रही है? 11 बीघे आ रही है तो क्या खबर में लेके जाएगा क्या उसे? 11 बीघे 11 बीघे आ रही है तो तोप मार ली क्या तुमने 11 बीघे खरीद कर? उसके दिल से जाकर पूछो यार, बेटी वाले का दिल कैसा गवारा कर। हम अपने घर का बकरी का बच्चा पला हुआ अपने हाथ से किसी को देना गवारा नहीं करते यार। वो 18, 22, 20 साल की लड़की पली हुई अपने हाथ से अब तेरे दूसरे का हाथ में रवाना कर देता है। कभी पूछा उस बाप से? सो जख्म होते हैं उसके दिल पर कि खाने के अंदर कमी रह गई तो बारात वाले लानत देंगे। हालांकि इस्लाम और शरीयत के अंदर बारात का कोई जिक्र है ही नहीं। मुझसे कहा था एक ने, बोले हजरत आप 10,000 लेते हो निकाह पढ़ाने के, ये जायज नहीं है। मैं बेटे बुलेट लेकर आया कल, ये तेरे बाप ने जायज कर दी? ये 4 पहिया तूने अपनी बहन को दी है, ये शरीयत के अंदर जायज है? इस तरीके से निगाह झुकाकर बैठ गया। मैं फ्री पढ़ाऊंगा, 4 लोग लेकर आओ, और जितना नजराना मैं लेता हूं 10,000 रुपए रख कर दूंगा, 4 लोग लेकर आओ बारात के अंदर। वाह 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 वाह। 4 लोग
और तुम सभी गुजारिश है नौजवानों, खाना एक टाइम का खाने से कभी जिंदगी माकूल नहीं होती है। किसी बेटी वाले की यहाँ जब शादी हो ना तो अपने घर बनवा कर खाना खा, उसके यहाँ खाना खाने की जरूरत नहीं है, ताकि उसका खाना बचाए, उसके मेहमानों की इज्जत रह जाए। जब तुम दूसरों की इज्जत करोगे तब परवरदिगार आलम तुम्हें इज्जत के बाग अता फरमाएगा, तुम्हें रिज़्क़ के महल अता फरमाएगा, तुम्हें शान और शौकत की जिंदगी अता फरमाएगा। जो झुकना जानता है वो कभी बर्बाद नहीं होता है, और जो अकड़ना जानता है वो हमेशा बर्बाद रहता है। लास्ट बात सुन ले, मेरे और आपके नबी ने कैसी शादी की थी फातिमा की? कोई चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी थी हुजूर की बेटी की शादी के अंदर? मेरी शादी के अंदर, कारी बिलाल साहब की शादी के अंदर बड़े बड़े मंत्री आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे, एमपी एमएलए आ जाएंगे, लोग कहेंगे यार बड़े ऊंचे घराने से बात होता है ना। तो यार जिस अली और फातिमा की शादी के अंदर आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, मुबारकबाद देने के लिए, वो कैसी शादी होगी? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम। आज लोग कहते हैं कि मौलवियों का सियासत से क्या काम है? तो सियासत तू करेगा अंगूठा छाप। जिस सियासत का लक़ब ही मालूम नहीं, सियासत कहते किसे हैं? जब तक मस्जिद में सियासत रही कोई अबू बकर के बनकर आया, जब तक मस्जिद के अंदर सियासत रही कोई उमर फारूक आजम बनकर आया, कोई उस्मान गनी बनकर आया, कोई हजरत उमर अली हैदर करार बनकर आया। जब मस्जिदों के अंदर सियासत की चर्चा थी कोई गौसे आजम बनकर आया, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनकर आया, कोई बरेली के सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान इल्म के चट्टान बनकर आया। और जब मस्जिदों से सियासत निकाल दी गई तो कोई जालिम बनकर आया, कोई भेड़िया बनकर आया, कोई लुटेरा बनकर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मस्जिदों के अंदर जब तक सियासत होती रही तो हमारे कायद भी अच्छे थे, हमारे रहनुमा भी अच्छे थे, और जब मौलवियों से लोगों ने सियासतों को छीन लिया, आज कायद भी बेकार है, आज रहनुमा भी बेकार है। मस्जिदों को आबाद करना और मस्जिदों के अंदर सियासत में सीखना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारी नस्ल को आबाद करना ये परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी की हुजूर ने हजरत फातिमा की, जब रुखसत किया ना तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी आज मैं तुझे विदा कर रहा हूँ, आज मैं तुझे अली के हवाले कर रहा हूँ। याद रखना मैदान महशर में मुझसे तब मिलना जब तुझसे तेरा शोहर हजरत अली राजी हो। क्या कहा था मेरे नबी ने? तब मिलना मैदान महशर में। क्या चीज की कमी थी मुस्तफा के पास? हुजूर चाहते तो जन्नत के महल जमीन पर आ जाते, हुजूर चाहते तो सोने और चांदी हीरे के ढेर लगकर जमीन पर आ जाते, लेकिन मेरे नबी ने कैसा नक्शा खींच कर दिया था उम्मत को। हुजूर जानते थे मेरी उम्मत के अंदर गरीब भी होंगे, मेरी उम्मत के अंदर कमजोर भी होंगे, मेरी उम्मत के अंदर लागर भी होंगे, मेरी उम्मत के अंदर इतने पैसे वाले नहीं होंगे। मेरे नबी ने ऐसी शादी की, जब फातिमा को रुखसत किया ना तो वो शादी आज कायनात के अंदर चमक रही है। जब उस शादी के मुताबिक कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो परवरदिगार आलम उसे इज्जत से नवाजा करता है। रब्बे करीम उसकी इज्जतों के अंदर चार चांद लगा दिया करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लास्ट बात सुन ले, आप शादी करें तो पैसे वाले की यहाँ ना, दीन वाले की यहाँ करें। अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला हो ना, वो भेड़िए भी फिर रहे हैं चारों तरफ, मनहूस चारों तरफ टहलना है कि हम तो हुजूर के मानने वाले हैं, हम तो सुन्नतें भी अदा करते हैं, हम तो फर्ज भी अदा करते हैं। तेरे बाप ने आज तक सुन्नतें अदा ना करी तो सुन्नत अदा करेगा? और ये भी बात सुन ले, ये जो तबलीग करते हैं ना, ये फ्री के अंदर तबलीग नहीं करते, इनकी वो होती है पैसे बंधे हुए होते हैं, किसी के 50,000, किसी के 30,000, किसी के 40,000। फ्री में तबलीग करेगा तो इसके बीवी बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। अगर तबलीग करने का इतना शौक है तो वो क्या मैं एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाकर घंटा तोड़ दे और वहां जाकर अजान पढ़, तब तो तबलीग मानी जाएगी। तबलीग की अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने, तबलीग की हुजूर के गुलामों ने वहां तबलीग की जहां इस्लाम को लोग नहीं जानते थे, जहां कुरान को लोग नहीं जानते थे। हिंदुस्तान को कुफरिस्तान कहा जाता था। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपना कदम मुबारक हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखा था तो चारों तरफ कुफर का अंधेरा छाया हुआ था। एक अज़ान के अल्फाज मोइनुद्दीन ने पुकारे थे, फिर रब की बारगाह में अर्ज की थी, मालिक करीम कैसे दीन को पहुंचाऊंगा? रब इरशाद फरमाता है, ओ मोइन अज़ान पढ़ना तेरा काम है और मुस्तफा का दीन पहुंचाना मेरा काम है।
ذروں میں رہ گزر کے چمک چھوڑ جاؤں گا، پہچان اپنی دور تلک چھوڑ جاؤں گا، خاموشی کی موت گوارا نہیں مجھے، شیطا اٹھ کر بکھرا چھوڑ جاؤں گا۔ اسلام زندہ باد، مسلمان قوم پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک کریم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رسول کو آباد رکھے، جن کی شادی ہو رہی ہے یہاں سے وہاں تک کا سفر آسان رکھے۔ کلمہ طیبہ میں پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔